conventional software databases. That is, if the hacker gets even a one loophole of that particular database, you will be getting directly the access of that entire database, and that creates a heavy theft for that particular company. So the main problem which we are solving here is that we will be providing decentralized web solutions that is completely integrated with the backend technology of blockchain, which helps us in keeping all the sensitive data completely tamper-proof and completely transparent, wherein such companies where these particular centralized databases are used, lots and lots of data breaches are happening. Like we can take an example of Air India. Air India lost its lot of data, as well as Domino's. It also lost. Even government sites are getting threat of losing the data, such as we can say that Aadhaar card, nearly 1.2 billion entries of Aadhaar card have been data breached and directly sold on dark web, as well as data of IRCTC have been also recently gone through such problems. So mainly the thing that they are not transforming their databases on blockchain is that they have been using their particular databases from past many years. So directly transforming that particular database through blockchain backend creates a huge amount of expenses for that particular companies. So that's one of the reasons why they are not able to transform from centralized solutions to decentralized solutions, and that's why we as in software as a service company, we are providing the solutions that we can build particular solutions from them, and we can directly integrate our solutions with their existing backend parts, with their existing databases. So they don't. Government companies, they're talking about making any of the companies. B2G, or you wanted to go with the B2G or B2B? Mostly, sir, for the time being B2B, then we will be expanding further. Diploma studies. So our theme is culture and heritage. तो मेन फोकस है हमारा कल्चरल हेरिटेज. अगर आप कोई भी स्टूडेंट को या कोई भी बच्चे को पूछ लो कि श्री राम के पिताजी का नाम क्या है, तो लोग धृतराष्ट्र बोलते थे दशरथ की जगह. मतलब अपने खुद के हेरिटेज के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, अपना कल्चर नहीं पता है. अभी भी एक गेम एग्जिस्ट करती है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, उसमें ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बताया गया है. तो लोगों को ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता है इंस्टेड ऑफ इंडियन मिथोलॉजी. इंडियन मिथोलॉजी बहुत वास्ट है. दो एपिक्स है हमारे, रामायण एंड महाभारत. तो अपने कल्चर के बारे में रामायण से बेटर हमको लगा कि रामायण इज द बेस्ट ऑप्शन टू एक्सप्लेन आवर कल्चर एंड आवर हेरिटेज, बिकॉज इट हैज लाइफ वैल्यूज एंड मोर. सो वी हैव क्रिएटेड अ गेम रामायण. So it has three main playable characters, but which is Ram, Ravan and Hanuman. So the player can play the character and live the character. और mostly जो games exist करती है, I have researched and given some names about the games which already exist on Ramayana, but उसमें play नहीं कर सकते. मतलब सिर्फ सीता हरण से लेके वो सब का जो मेन पार्ट है रावण दहन और वो सब ही है. उसके बाद कुछ है नहीं. तो हम लोगों ने जो पास्ट लाइफ्स है कि बिफोर द एक्चुअल रामायण बिगिन, व्हाट वर द लाइफ्स ऑफ रावण, रामा एंड हनुमान, हाउ देयर बर्थ टुक प्लेस. वी हैव कवर्ड ऑल दैट फॉर्मेट्स. सर तो गेम एक्चुअली बेस्ड है अनरियल इंजन की टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आजकल सर बच्चों का इंटरेस्ट होता है मुझे हाई ग्राफिक्स का गेम खेलने में, क्योंकि ट्रिपल ए टाइटल्स में मोस्ट फोकस होता है आजकल का. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता गॉड ऑफ वॉर, वो एक माइथोलॉजी पे बेस्ड गेम है. तो आज आप किसी को भी पूछो ना, किसी भी अच्छी गेम को उसका भी खेला ही होता है, और लोगों को इसकी उस माइथोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा इसकी उनको पता है डिटेल. और हमारे हिंदू गेम का आज तक पूरे इंडिया में कोई ट्रिपल ए टाइटल नहीं बना है, और हमारे इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर कोई प्रॉपर गेम भी नहीं बना है. और सर अगर ग्रीक मैथोलॉजी इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, इट इज बोरिंग. पाइथागोरस ले लो या किसी का भी ले लो, तो उसमें अगर इतना फैन फॉलोइंग है, तो व्हाट अबाउट इंडियन मैथोलॉजी जिसमें इतना वास्ट कल्चर है, एडवेंचर है. फर्स्ट फ्लाइट भी जब रामायण से ही बनी. सो द टॉपिक इज रियली इंटरेस्टिंग, सो इट विल एंगेज मोर प्लेयर्स. हमारा गेम उनकी बिफोर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ. We all of us know that dairy industries use packets known as milk packages, which are made up of LDPE. LDPE is one of the very bad plastics that is being used, and we are trying to make a blend that can replace LDPE. The blend which we have made is biocompostable, and it will degrade in a span of 3 months. So that will be a very good step for sustainable development.
these are some of the statistics, like every day 5.2 crore of liters is made is produced, and to package the like 8.4 million CR packages are there. Now just think about the exponential bad effects the LED is causing to the environment. So like this is a solution. Our packets are known as eco bags. So like they replace the products made by LED and LLDPE. Our goal is to basically create a eco cycle where the things that we have taken from the nature to develop our thing is returned back to it, so that there is like no accumulation of energy or anything anywhere in between. This is the process. So this is the difference between the existing things that are being used and the things that we are not आपका using. मटेरियल है क्या है? हमारा मटेरियल है PPAT and PLAs. So PPAT is it is like polybutyl Okay. So like you are extracting from some bacteria or like natural sources? Yeah, see, when I tell you about like how we started, so we actually started by some algae, but it turns out that it is really very difficult to work with algae. So we explored other areas and we Like? went to areas like some different things that are biocompostable and can be polymerized easily. So like PLA is something that can be derived from algae. So and petroleum and PPAT. So PPAT can be derived from both renewable resources like cell mass, biomass, different kinds, and petroleum as well. How it is different from polyhydroxy alkanoids and polyhydroxy butanoids? Butanoids and alkanoids are derived from long manganese, and it is like these things are still under research. When you try to see the basic procedure of developing plastic from algae is like extracting these elements from the algae. This involves in bioprocessing. Now, Model of AIFM 122, which stands for Artificial Intelligence Farming Model 122. Now this 122 has a very different meaning, in which 122 represents, one is like the main key feature of our project, and the triple twos are the behind projects, behind the features which are hidden, but it can be seen through its working. So basically, the proposed idea is, this is our model, which can be used for multiple farming, what we can say, farming factors, which includes seed sowing, which includes ground growing, and the main primary factor of this is like this will have a mechanism which we have created in Python using image sensing, which can sense through the crops and the leaf, and it can like what we can say, it can predict that there is a particular insect for a cotton crop which can produce harm to the crops. So the first symptoms are seen on the leaf of the crop, the stains. So like we can predict the early attack of that crop, early attack of the insect, and we can give our readings to the farmer. And also this machine is also capable of spraying the pesticides wherever it can predict, and it will detect the crop attacked by the insects. And also it has one more feature of water sowing also. It will have two soil moisture sensors at the below, which will go through the whole field, and it can detect the precipitation of moisture in the soil in every part, and wherever it will feel that it is not adequate as per the field, the temperature, and as per the field requirements, it can also through the supply port, it can also provide water to the crops. So this is our first model, that it will include IoT and automotive vehicles. These are the advantages what our machine has on compared to the other machines. The main advantage is that here we have using batteries plus solar, and that we have tried to use not lead batteries. Instead of that, we are using lithium batteries, which are a bit expensive, but they are high in performance, which can give us result very faster, and it can be also used as an optimized and like a good source of energy. And also we have gotten an incubation on 16. हमारे व्हील क्रेन गए तो उसका कॉस्ट 20,000 का व्हील क्रेन मतलब ये हम एस्टिमेट लेके चल रहे, कम लेके हम उतना यूटिलाइज नहीं करेंगे फंड। तो ये मशीन भी बनाओगे? ये फुल एक प्रोटोटाइप आएगा, जो ये प्लास्टिक बनाएगा। और 3 टैंक की कैपेसिटी क्या है? और टैंक की कैपेसिटी देखो साइज पता है
इसको है ना निया एक चीज़ करो आप, व्हाट आई सजेस्ट यू, एक आप टेबल बनाओ, उसमें लिखो पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस मतलब और उसकी फाइनल प्राइस और प्लेटफॉर्म कहाँ से आप परचेस करने वाले हो। हाँ, इसमें मोस्ट ऑफ चीज तो जो नहीं यार, इसको नहीं छोड़ो। जैसे आप इसको छोड़ो। पंप्स यूज कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, निकाली है मेरे रिलेटिव्स हैं और इसके पहले मैंने जो प्रोजेक्ट किए थे उनके जो फैब्रिकेशन वर्कर होते हैं उनसे निकालिए। अगर आप ये ऑनलाइन लेने जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक्सट्रूडर लेने जाऊंगी तो एक्सट्रूडर का ऑनलाइन मुझे जो साइज में चाहिए वो तो ले लेगा नहीं। मैं आपका ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं डिकम्पोज कर देते हैं, तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो इन्वायरमेंट में जाता है या डायरेक्ट पब्लिकली हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे हजार्डियस डिसीज होते हैं, जैसे कैंसर, एड्स और ब्लड बॉर्न डिजीज हो सकती है। तो उन सबको हटाने के लिए, इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली करने के लिए हमने एक मशीन बनाया है, इंसिनरेटर बनाया है, जिससे कि जो पैड्स वगैरह होंगे वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेसिस के ऊपर। और लाइक जो बाकी अदर जैसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है पर वो बहुत सारा कॉस्ट कंजप्शन है और लाइक इतना इजी टू ऑपरेट वगैरह नहीं है। तो इजी टू ऑपरेशन के लिए और लो कॉस्ट कंजप्शन में एक ऐसा टाइप का मशीन इनोवेट करा है जो इजीली अवेलेबल हो सके, इजीली यूज हो सके। और सर इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इजी टू कंजप्शन, लाइक जो इजीली यूज हो सके, लो कॉस्ट कंजप्शन हो सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सके और जितना भी वेस्ट मटेरियल हो सके, लाइक जो वेस्ट मटेरियल जो बट निकल रहा है आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के बाद में जैसे कि ऐश निकलता है और एयर निकलती है, उन दोनों को रीयूज कैसे कर सकते हैं। बाकी सब ये रीयूजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो हम लोग रीयूज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो जो ऐश निकलती है हम उसको कंक्रीट बेसिस में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारी रिसर्च जो है वो ऑन द प्रोसेस है। और जो एयर निकलती है वो हाईली हजार्डस कार्सिनोजेनिक गैसेस निकलती है, उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर एक कैंसर हो सकता है। तो उसके अंदर हमने एयर फिल्टर लगा रखा है, जो इस एयर फिल्टर के अंदर जो जितने भी नैनो पार्टिकल्स होंगे सबको ऑब्जॉर्व कर लेगा। और हम इस चीज़ को वर्क ऑन करने की कोशिश करेंगे, जो नैनो पार्टिकल्स होंगे उसको अगर हम टेस्ट करें या उसको हम रिसर्च करें तो लाइक वो इस बेसिस के अंदर उसके अंदर ऐसे क्या चीज़ है कि वो आगे रीयूज हो सके। और वैसे भी अगर इसको नॉर्मली डिकम्पोज करना चाहिए इन्वायरमेंट में, ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट आउट ऑफ वेस्ट आउट ऑफ करने के लिए हम लोग उस पर रिसर्च करें कि आगे कैसे हेल्प हो सकता है या फिर क्या रिसर्च और क्या रीयूज हो सकता है। और बाकी मतलब बाकी कंपनीज जो है, बाकी जो चीज़ें, हमारा प्रोडक्ट उस चीज़ों से कैसे इनोवेटिव है, कैसे डिफरेंट है। बाकी जो है लाइक बहुत ज़्यादा हायर इन कॉस्ट है, वो पोर्टेबल नहीं है, वो कॉम्पैक्ट साइजेस में नहीं अवेलेबल है, और उसके अंदर जो रीयूजेशन प्रोसेस होता है वो हमारे अंदर है, वो बाकी अंदर नहीं होता। तो बाकी लाइक जो यूज़ करा वेस्ट है वो थ्रो कर देते हैं और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। हमारा मशीन जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। Start. Good morning, sir. My name is Anil, and the main problem was the uncontrolled growth of water hyacinth present in lakes. The water hyacinth is a weed which grows very rapidly. So this was the problem, and because of that, there is a mosquito spread. Mosquito spread along with oxygen depletion in floods, which causes death of fish. So the mostly problem is occurring in lakes, and the municipal corporation has to like give lot of money like in removal of it. So and also the fishermen are having problem for oxygen depletion, and they are also having lot of cost. So our approach was to establish a net-like structures in all the ponds, and there would be SS wire nets. Those wire nets would be floating based, and mostly the weed is floating based. So we can establish nets beneath the weeds. So when the weeds grow, we can just remove the nets easily with the help of a small tractor. So the cost will be reduced drastically. And these nets will be established in small sections, so it can be done very fast. Now differentiation is because like we are using nets, and mostly like municipal corporation uses JCB. So JCB like cost is coming very high. So this is our time frame. First we require the availability of ponds. Then we will establish wire nets. part of that, or SIH maybe. So हम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज पर फोकस कर रहे हैं। तो फिर
अभी जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए जो थेरेपी होती है वो इधर कंप्यूटराइज कॉग्निटिव रीट्रेनिंग होती है या तो न्यूरो फीडबैक थेरेपी होती है। और ये दोनों बहुत कम क्लिनिक्स में प्रोवाइडेड है अभी, और इसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो और ये जब हम मैन्युअली करने का ट्राई करें तो फिर वो उसका प्रोग्रेस ट्रैक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फिर ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ। और जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है मोस्टली पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डॉक्टर्स हु ट्रीट चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड काउंसलर्स इन स्पेशल स्कूल्स। और अभी मार्केट में जो ऑलरेडी इससे सिमिलर रेलिवेंट कुछ है तो फिर उनमें ये बात है कि ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। इधर जस्ट प्रोवाइडिंग कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव रीट्रेनिंग और दे जस्ट प्रोवाइडिंग न्यूरो फीडबैक थेरेपी, और दैट्स नॉट फोकस्ड स्पेसिफिकली और कस्टमाइज्ड स्पेसिफिकली फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आप लोगों ने ऐसे एप्स वगैरह देखे होंगे जिसके अंदर ऐसा है कि इम्प्रूव योर कॉग्निटिव फंक्शन इन 5 days, वैसा कुछ। तो थोड़ा बहुत साइंटिफिकली बैकअप है बट नॉट एज मच एज प्रॉपर थेरेपी व्हिच इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग। ये थोड़े बहुत नाम है जो मार्केट में अभी एस्टैब्लिश है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉग्मेड ही एस्टैब्लिश है 2005 से, पर अभी तक उन्होंने कुछ एक्सपैंड नहीं किया अपना। वो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं और उससे ज़्यादा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और मार्केट का जो ग्रुप है उसको भी एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। वो बस कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव रीट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर वो बस एक ही चीज़ पे लोग फोकस कर रहे हैं मार्केट पे। तो फिर हम ऐसे थोड़ा जनरल सोल्यूशन दे रहे हैं स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। प्रोटोटाइपिंग, अभी हमें प्रोटोटाइपिंग के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए फॉर अ प्रॉपर वर्किंग प्रोटोटाइप, एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए फंडिंग लगेगी उसमें। by which we will search, like we want उनको एक टॉपिक सर्च करना है कि उसमें कोई डाउट है तो वो सर्च करेंगे और उसके बेसिस पर सारे टीचर्स आ जाएंगे और उनके रिव्यूज़ और रेटिंग्स के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट करके उनके साथ कॉन्टेक्ट करके वो एक सेशन और लाइक कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और फिर इसके साथ हमारे जो कस्टमर यूजर्स हो गए, स्टूडेंट और ट्यूटर्स हो गए। स्टूडेंट जो सर्च करके और ट्यूटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू वो एक अर्निंग कर सके एज एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू विच दे कैन अर्न मनी, और उनके स्टूडेंट्स को जो एक कस्टमर लाइक चाहिए स्टूडेंट्स वो ग्रैब कर सकते हैं थ्रू ऑडियंस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। सोल्यूशन में ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। फिर पार्शली है कि लाइक नहीं मोस्टली होते हैं जो मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कोर्स बेस्ड होते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म होगा कि टॉपिक वाइज, लाइक एक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो स्पेसिफिक उस टॉपिक के बेस्ड आप उसको ट्यूटर्स फाइंड कर सकते हैं। और लोग फिर उसमें लैंग्वेज बेस्ड हो सकता है कि मॉडल की नहीं जिस एक कोई पर्टिकुलर इंग्लिश हिंदी नहीं, अपने रीजनल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर पाओगे अपने ट्यूटर्स। फिर टॉपिक वाइज लर्निंग, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, रजिस्ट्रेशन सिलेक्शन। हमारे कॉम्पिटिटर्स में एक सुपर प्रॉफ है, that is a website, और दूसरा है अर्बन प्रो, that is an application है, लेकिन मोस्टली ये वेबसाइट बेस्ड है और इनके जो चार्जेस होते हैं बहुत अफोर्डेबल नहीं है। दूसरी जो वेबसाइट है वो हाई चार्जेस करते हैं लाइक, और इंडिया बेस्ड नहीं है, ग्लोबली और बहुत हाई चार्जेस होते हैं। और सोल्यूशन है अफोर्डेबल है, फिर ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म है, कि नहीं जस्ट वेबसाइट नहीं, वेबसाइट एप्लीकेशन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। And solution is not just based on course topic wise as well.